اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ وہ اس سے صرف ایک سوال پوچھ رہا تھا، مگر رابعہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینے والی تھی۔ کافی دیر تک اس نے کوشش کی کہ رابعہ کوئی تو لفظ بولے گی، مگر رابعہ جیسے بولنا ہی بھول چکی تھی۔ تبھی رابعہ کی خاموشی کو ختم کرتے ہوئے پستول کی گولی کی آواز گونجی، جس پر رابعہ زور زور سے چیخنے لگی۔ تبھی گھر والے سب اس کمرے میں اکٹھے ہو گئے، لیکن سب نے وہاں پر پہنچتے ہی شکر ادا کیا، کیونکہ یہ کہانی سچی ہے۔ البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ رابعہ کئی گھنٹوں سے دروازے پر مسلسل دستک دے رہی تھی۔ کوئی تو دروازہ کھولے، میری مدد کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ ایسی کئی باتیں اس نے بلند آواز میں التجائیہ انداز میں کہی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی اس پکار کو سنتا اور اس بند کمرے کا دروازہ کھولتا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، رابعہ کو تو اپنے ہاتھ تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اسی اندھیرے میں وہ دروازے کی ٹوہ لگانے کی کوشش میں کئی چیزوں سے ٹکرائی اور اس وجہ سے اس کے پاؤں پر سخت چوٹ آ گئی تھی، جس کے سبب اب وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایسے میں وہ اندازن دروازے کے پاس پہنچی تو چیخو پکار، التجا، صدا، کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے، مگر ناکام ہو کر وہ وہیں دروازے پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ کتنے ہی آنسو اس کے رخسار پر سے بہہ گئے تھے۔ وہ جو بڑے ارمانوں سے دلہن بن کر احمد کے گھر میں آئی تھی، اب بہت جلد وہ ارمان ختم ہونے والے تھے۔ اس لیے اس شادی کو لے کر جتنے خواب دیکھے تھے اس نے، سب بھیانک تعبیر میں بدلنے والے تھے۔ بناؤ سنگار سب اس کے آنسو اور پسینے کی نظر ہو چکا تھا۔ قیمتی اور بھاری بھرکم لہنگا جو اس نے احمد کی پسند سے بڑی خوش دلی سے خریدا تھا، اب اس کے سارے جسم پر جیسے سانپ بن کر لوٹ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے اب وہ بے سدھ ہو چکی تھی اور غم پریشانی سے نڈھال اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک سے اسے کمرے سے باہر ہلچل محسوس ہوئی۔ قدموں کی آہٹ کمرے کی طرف آتے ہوئے سنائی دے رہی تھی۔ تبھی وہ دروازے سے تھوڑی پیچھے ہٹی۔ ایک دم سے کسی نے دروازے کا جیسے باہر سے تالا کھولا اور لات مار کر دروازہ کھولا۔ تبھی باہر سے آنے والی روشنی نے جیسے اس بھیانک اندھیرے کو 1 منٹ میں ختم کر دیا ہو۔ رابعہ بولنا چاہتی تھی، مگر پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل رونے اور چیخو پکار کی وجہ سے اب اس کا گلا بیٹھ چکا تھا اور آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی احمد نے کمرے کی لائٹ جلائی اور رابعہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ رابعہ وہی تھی جس سے اس نے سب سے پہلے دوستی کی اور پھر 4 سال محبت میں گزارے تھے۔ شادی کے لیے دونوں نے کئی پاپڑ بیلے تھے، تب جا کر دونوں طرف سے گھر والوں نے منظوری دی اور وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ مگر جانے احمد کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ پہلے تو وہ رابعہ کو ایک پل کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور تو اور ہر گھنٹے بعد اسے فون کال کر کے اس کی آواز سنتا، دیوانوں کی طرح حرکتیں کرتا تھا۔ آج ساری عمر کے لیے اس کا ساتھ مل گیا تھا، مگر اب احمد جیسے اپنا اصلی روپ دکھا رہا تھا، گویا وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے چہرے پر نقاب کیے ہوئے تھا، جو اب اس نے شادی کی پہلی رات ہی اپنے چہرے سے اتار دیا تھا۔ اس کا بھیانک روپ دیکھ کر رابعہ کی روح تک کانپ گئی تھی، مگر ابھی تو وہ صرف ایک جھلک تھی، ابھی وہ کھل کر سامنے آیا ہی کہاں تھا۔ احمد رابعہ کو اس حال میں دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے رابعہ کی طرف پلیٹ بڑھائی جس میں آدھی سوکھی روٹی اور ساتھ تھوڑا سا اچار تھا۔ پانی کا ایک گلاس تھا جسے اس نے رابعہ سے بہت دور رکھ دیا تھا، یہ کہتے ہوئے، میرے سامنے پہلے کھانا کھا لو، پھر پانی مانگو گی تو دوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کس قدر بھوک لگی ہوگی، بھوک سے زیادہ پیاس ہوگی،
मगर मेरा यकीन करो, तुम्हारी इस भूख और प्यास की बर्दाश्त से ज्यादा मैंने बर्दाश्त किया है, और सब्र भी। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। आखिरी अल्फाज पर उसने बहुत जोर दिया था। राबिया उसकी बातें सुनकर फिर से रोने लगी। अगरचा अब आंखों से आंसू जैसे खत्म हो गए थे, मगर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे तो ये सब एक भयानक ख्वाब लग रहा था, मगर ये ख्वाब नहीं हकीकत थी। तभी राबिया ने हिम्मत करते हुए अहमद से कहा, वो खाना नहीं खाएगी, उसे अभी अपने घर वालों के पास जाना है। तभी अहमद आगे बढ़ा और राबिया के करीब आकर जमीन पर बैठ गया। उसे घूरते हुए कहने लगा, मेरी प्यारी बीवी, कौन सा घर? यही तुम्हारा असली घर था जिसमें तुम अब हमेशा के लिए रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए। खाना नहीं खुद से खाना तो बता दो, मैं खिला देता हूँ, मगर फिर एतराज मत करना कि हलक में से नवाला नहीं गुजर रहा। तभी अहमद ने अपनी बेल्ट उतारी और उसे लहराने लगा। राबिया काफी हद तक उसकी बातों से जान चुकी थी कि वो किस कदर बुरा इंसान है, मगर इस कदर वहशी होगा ये वो सोच भी नहीं सकती थी। पिछले 12 घंटों में उसने अहमद का जो रूप देखा था वो पिछले 5 सालों में नहीं देख पाई थी। तभी राबिया सहमते हुए उस सूखी रोटी को अचार से लगाकर छोटे छोटे नवाले बनाकर खाने लगी। रोटी इस कदर सूख गई थी कि उसके खुश्क हलक में से गुजर नहीं पा रही थी। मजबूर होते हुए राबिया ने अहमद से पानी मांगा। पानी मांगने पर अहमद को उस पर ना चाहते हुए भी तरस आ गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था रोटी किस कदर सूखी है और उसे निगलना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। खाना खिलाकर अहमद कमरे में से निकलने ही वाला था। तभी राबिया उससे कहने लगी, अहमद, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे मेरी गलती तो बताओ। क्या तुम्हें शादी में किसी ने कुछ कहा है? तुम्हें अल्लाह का वास्ता अब मुझे जो कमरे में बंद मत करना। अगर यूं बंद करके जाओगे भी तो इससे पहले मुझे दी हुई सजा के पीछे छुपी वजह जरूर बताकर जाना, वरना मैं सोच सोच कर मर जाऊंगी। राबिया की बात खत्म होते ही अहमद पीछे पलटा और राबिया से कहने लगा, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। ये कहकर वो फिर से दरवाजा बंद करके दरवाजे को ताला लगा चुका था, जबकि इस बार उसने थोड़ी रहमदिली दिखाते हुए कमरे की लाइट ऑन कर दी थी। राबिया की नींद तो उड़ चुकी थी, वैसे भी अब सुबह के 10 बजे का टाइम था। उसने कमरे में फैली हुई रोशनी में दीवार पर लगे हुए क्लॉक से टाइम देख लिया था, जबकि वो रुखसत होकर जब इस घर में आई थी तब रात के 9 बज रहे थे। उसी रोशनी में उसने अपना मोबाइल तलाश करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि जब अहमद ने उसे कमरे में बंद किया था तब कमरे में अंधेरा था और उसके हाथ में पर्स था जिसमें उसके कुछ सलामी के पैसे और मोबाइल था। अचानक कमरे में यूं बंद होने पर राबिया समझ ही नहीं पाई थी कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसी बेचैनी में उसके हाथ से पर्स भी कहीं गिर गया था। कमरे में अंधेरा था और ऊपर से वो अपने जैसे होश गवा बैठी थी, इसलिए उसे कुछ खबर ही नहीं रही थी। हैरत अंगेज तौर पर उसके मोबाइल पर किसी ने फोन कॉल तक नहीं की, यहाँ तक कि उसके घर वालों में से भी किसी ने भी फोन करके उसका हाल तक नहीं पूछा था, क्योंकि अहमद राबिया की सोच से भी ज्यादा शातिर था। उसने राबिया के घर वालों को फोन कॉल करके रात को ही घर पहुंचते ही बता दिया था, हम लोग खैरियत से हैं और उन्हें अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वलीमे की तकरीब 1 रोज बाद की थी, इसलिए वो लोग भी राबिया की तरफ से मुतमईन हो गए। वैसे भी शहर में होने वाली शादी रात गए ही खत्म होती है और फिर शादी की तकरीब में सब लोग ही थक कर सो चुके थे। हर कोई सुबह में देर से जगा था। नाश्ता लेकर आने से अहमद ने पहले ही ससुराल वालों को मना कर दिया था। यूं अहमद ने राबिया से तमाम राब्ते मुनक़ता कर दिए थे, जबकि राबिया को अब अपना मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। फिर बेड के नीचे उसने देखा तो उसे अपना पर्स वहीं पर पड़ा मिला। तभी उसने जल्दी से पर्स को खोला तो वहां पर पैसे तो थे मगर मोबाइल गायब था। फिर वो समझ गई ये अहमद का ही काम होगा। कमरे में रोशनी होने की वजह से जब वो बाथरूम में गई थी तब अहमद ने मौका पाते ही मोबाइल पकड़ लिया था।
जाते वक्त वो अपने साथ ही ले गया था। राबिया बहुत बोली थी जिसका पूरा फायदा अहमद ने उठाया था। राबिया को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अहमद तो उससे इस कदर मोहब्बत करता था, फिर ऐसा क्यों कर रहा है। सारा दिन वो यूं ही बेचैनी में बेड पर लेटी रही। पांव पर भी नील पड़ चुका था, मगर पांव पर लगी हुई चोट के दर्द से ज्यादा उसके दिल पर लगी हुई चोट का दर्द था। सच कहते हैं, इंसान जब किसी को अपनी जान बना लेता है तो फिर वो जान ही निकाल देता है। शाम को अहमद फिर से कमरे में आया और आधी रोटी और अचार लेकर आया। फिर से राबिया के सामने रखते हुए उसे खाना खाने के लिए कहने लगा, मगर इस बार उसने जग में पानी लाकर दिया था। वो जानबूझकर राबिया को पहली रात में ज्यादा अजियत दे चुका था। राबिया को यूं लग रहा था जैसे वो अगर यूं ही कुछ दिन और इस हालत में रही तो पागल हो जाएगी। राबिया ने बेदिली से नवाले अपने मुंह में डाले और जहर मार करने लगी। अहमद उसको देखते हुए कहने लगा, राबिया कल हमारा वलीमा है और तुम तो जानती हो हम लोगों ने वलीमे का जोड़ा कितनी मेहनत से खरीदा था। तुम्हें तो कोई जोड़ा ही पसंद नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किलों से तुमने मेरी मिन्नत समाजत के बाद वो जोड़ा पसंद किया था। मैं नहीं चाहता कि तुम वलीमे के रोज वो जोड़ा पहनो और उदास नजर आओ। कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वलीमे की तकरीब ही ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें सबके सामने यूं उदास नहीं देख सकता। हाँ, मेरे सामने यूं उदास और परेशान रहती हो तो मेरा यकीन करो मेरे दिल को सुकून मिलता है। राबिया जो कि अहमद से शादी से पहले हर वक्त चिड़ियों की तरह चूं चूं करके बातें करती रहती थी, अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। हाँ, पूछती थी तो अपना कसूर या गुनाह पूछ रही थी, जिस वजह से उसे नाकर्दा गुनाह की सजा मिल रही थी। राबिया को अहमद की बात समझ नहीं आई। तभी अहमद ने उससे कहा, अगर तुमने कल वलीमे वाले रोज जबान खोली तो मेरी बात याद रखना, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, ये तो मानती होगी कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता था। अब उससे भी ज्यादा नफरत करता हूँ, इसलिए मुझे अभी बता दो। अगर तुम कल कुछ गड़बड़ करने वाली हो तो मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। ये कहते हुए उसकी नजर राबिया के पांव पर पड़ी, जिस पर चोट लगने की वजह से नील पड़ चुका था। तभी उसने अपने हाथों से राबिया के पांव को पकड़ा और उसे दबाने लगा। जिस जगह पर नील पड़ा था वहां पर अपना अंगूठा रखते हुए उसे जोर से दबाया। राबिया दर्द से चीखी और अपने पांव को अहमद के हाथों से छुड़ाने लगी, मगर अहमद के हाथों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। राबिया बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी अहमद उससे कहने लगा, इतना डेमो काफी था। ये कहकर उसने राबिया के पांव को झटक दिया और फिर कमरे में से चला गया। राबिया का घर सिर्फ वही एक कमरा था जिसमें जरूरत की हर शय थी, जैसी एक बेडरूम में हुआ करती है। खूबसूरत महंगा फर्नीचर, बेड, सोफा, सिंगार के लिए ड्रेसिंग टेबल, अटैच बाथरूम, रूम में लगी हुई अलमारी और फिर उस अलमारी में खूबसूरत कीमती कपड़े। गरज हर चीज मौजूद थी, मगर राबिया उन सब चीजों से बेनियाज अपने दुख में मदहोश थी। कुछ देर बाद अहमद फिर से कमरे में आया और इस बार उसने राबिया को दवाई दी। ये मरहम थी जो उसने राबिया को पांव पर लगाने के लिए दी थी। अहमद खुद ही जख्म दे रहा था और खुद ही मरहम लगा रहा था। आखिर को वो राबिया से मोहब्बत करता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे राबिया पर तरस आ जाता था। राबिया को अहमद का ये दोगला रवैया समझ नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह टूट चुकी थी। अगले रोज वलीमा था। राबिया को वो ब्यूटी पार्लर में लेकर गया और हमेशा की तरह राबिया बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, अगरचा उसने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट जरूर सजाई थी। राबिया के मैके वाले भी शादी हाल में पहुंच गए और सब लोग उन दोनों को देखकर अश अश कर उठे थे। हर तरफ उनकी खूबसूरती और आइडियल जोड़े की सरगोशी हो रही थी, मगर राबिया ही जानती थी कि उस पर क्या क़यामत गुजर रही है। वलीमे की तकरीब खत्म होते ही अहमद ने किसी किस्म की हिचकिचाहट दिखाए बगैर सबसे कह दिया कि वो लोग वापस घर ही जाएंगे।
कल उनका हनीमून शुरू हो जाएगा, इसलिए आज रात उन्होंने पैकिंग करनी है। ये कहते हुए उसने राबिया के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। सबको यही जतलाने लगा कि वो तो एक दूसरे पर आज भी वैसे ही जान लुटाते हैं जैसे वो 3 रोज कबल लुटा रहे थे। राबिया को अहमद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था वो चिल्ला चिल्ला कर उसकी असलियत सबके सामने ले आए, मगर वो खामोश रही क्योंकि वो बहुत डर गई थी और वैसे भी अपने घर वालों को वो किस मुंह से क्या कहती। उसने जबरदस्ती अपनी जिद पूरी करवाई थी, जिसका नतीजा अब वो देख चुकी थी। राबिया जानती थी वो किसी हनीमून पर नहीं लेकर जाएगा। ये सब वो ढोंग कर रहा था ताकि उसके घर वाले अहमद के घर में ना आए और सारी सूरत हाल के बारे में जान ना ले। फिर राबिया की मजीद सख्तियां शुरू हो गईं, क्योंकि अहमद ने 3 रातें राबिया को उसी अजियत में गुजारने दी और उसके बाद अहमद ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। गोया अब राबिया उस घर में घूम फिर सकती थी। ऐसे में राबिया ने कई बार घर से भागने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही, जिसके सबब अहमद ने उस पर हाथ भी उठाया था। कई रोज तक यही तमाशा चलता रहा। घर में कोई मुलाजिम भी नहीं था। गेट पर एक चौकीदार था जिसे घर के अंदर तक रसाई नहीं थी, जबकि राबिया गेट तक कभी पहुंची ही नहीं थी। ऐसे में राबिया की कई बार अपने घर वालों से अहमद ने फोन पर बात करवाई, मगर इस वक्त वो राबिया के पास ही बैठता था ताकि राबिया कुछ भी अपने घर वालों से ना कह सके। राबिया का मोबाइल अहमद ने अपने पास रख लिया था और राबिया के मुंह से ही उसने उसके घर वालों को ये कहलवा दिया था कि उसका मोबाइल कहीं खो गया है और वो बहुत जल्द नया मोबाइल ले लेगी, जबकि इस बात को भी अब 2 महीने का अरसा गुजर चुका था। घर वालों ने कई बार पूछा, राबिया तुम लोग वापस नहीं आए? तब राबिया घर वालों से अहमद के कहे मुताबिक झूठ बोल रही थी। वो लोग जब घर वापस आएंगे तो खुद ही बता देंगे। इस तरह घर वाले दोबारा उससे नहीं पूछेंगे और वैसा ही हुआ। अहमद एक बिजनेसमैन था और हमेशा की तरह वो जिस काम को करता था बहुत बखूबी सरंजाम देता था। बिजनेस में भी वो अपना अच्छा नाम बना चुका था। खुद का कारोबार था, इसलिए अपनी मर्जी का मालिक था। पहले अनथक मेहनत कर चुका था, इसलिए अब बैठकर खाने का टाइम आ गया था। अपनी मर्जी से ऑफिस आता जाता था क्योंकि उसे अपनी बीवी के घर से भाग जाने की फिक्र रहती थी। ऐसे में वो किसी पर एतबार नहीं कर सकता था, खुद ही हर वक्त उसकी निगरानी करता था। राबिया कई बार मार बढ़ने की वजह से अब घर से भागना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अहमद उसके घर से भागने के तमाम रास्ते बंद कर चुका है। अब उसने अपने आप को इस परिंदे की तरह मान लिया था जो किसी पिंजरे में कैद हो जाता है और कई रोज तक आजादी के लिए पर फड़फड़ाता है, मगर फिर हालात से समझौता करके उसी पिंजरे को अपनी दुनिया मान लेता है और सारी उम्र वहीं पर गुजार देता है, क्योंकि वो जानता है वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी आजादी किसी तौर भी मुमकिन नहीं। राबिया का भी ऐसा ही हाल था। राबिया कभी भी अहमद के कमरे में नहीं गई थी। अब खाना बनाने की जिम्मेदारी राबिया की थी। अगरचा अहमद के खाना खाने से पहले वो अपने सामने राबिया को बिठाकर हमेशा की तरह खाना खिलाता था। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो राबिया से मोहब्बत करता था, उसकी वजह उसकी बेयकीनी थी। उसे ये खदशा लाहिक था राबिया उसको जहर देकर मार न दे। बेचारी राबिया, वो कहाँ से जहर लाती? अलबत्ता इस बात पर उसने कभी गौर भी नहीं किया था। राबिया के दिल से अब अहमद की मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक रात राबिया को नींद नहीं आ रही थी। उसे अब अपने कमरे से वहशत हो रही थी। वो दिल बहलाने के लिए हाल में आकर बैठ गई। तब उसे महसूस हुआ जैसे कोई रो रहा है। वो हैरान हुई क्योंकि घर में सिर्फ वो दोनों ही रहते थे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।